नेटवर्किंग में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। Now friends, how this network is created. So for example, I have an office in Kurla, which is in Mumbai, and I have 10 PC. So what I will do is, I will buy a switch. Now switch, there are multiple vendors. So for example, we buy a Cisco switch. So Cisco is a company and most of the enterprise use Cisco devices as they're robust and they are very reliable. अब उसके बाद मैं इन 10 पीसी को ये स्विच के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो मेरा सेटअप है, ये सेटअप बन गया है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर यहाँ पर कोई मेरे पास सर्वर है and I have some files here, then I can transfer data from here to there, and I can, if I have a printer, then I can use this common printer for all of my PCs. So there is no need of individual printer. एक common printer से मेरा काम बन जाएगा. Why? Because I am on a local area network. Now friends, ये जो local network, local area network होता है, ये कैसे create होता है? मुझे इसमें कोई बड़ा काम तो नहीं करना पड़ता, बहुत ही सिंपल होता है। I just need to buy a switch. Just give me 2 minutes, I will be back online. This conference will now be recorded. Okay friends, so ये network create करने के लिए I just need a switch and PC and then a printer and all these things, servers, I can directly connect them. अच्छा, ये नेटवर्क को अगर मुझे एक्सपांड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे इस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस था और उसके बाद सेकंड फ्लोर पर भी हमने एक ऑफिस ले लिया, ठीक है। तो इफ आई वांट टू एक्सपांड दिस, आई जस्ट नीड टू बाय अ स्विच एंड आई नीड टू कनेक्ट दिस, दो स्विच को मुझे कनेक्ट करना होगा। इसको हम आगे देखेंगे कि इसको नॉर्मल जनरल वर्ड कहते हैं अपलिंक। आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, जो आगे आएगा, बट जनरल अभी के लिए हम वर्ड लेते हैं, इसको कहते हैं अपलिंक, जो एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ जाता है और यहाँ से you can connect your multiple PCs and then you can share your files, folders, even they can share this printer or you can have a separate printer here for them. Now in this case of LAN is having its own characteristic, और वो characteristic क्या है कि when we talk about LAN, the bandwidth which you get is very high. So everyone here, we all know what is bandwidth. So olden days, internet link, I remember MTNL dial-up connections. So MTNL is तो सही है. So in those days MTNL was there and 64 kbps or 512 kbps dial-up connection used to be there. So उसके बाद में धीरे धीरे अब तो ये टाइम है कि having an 100 Mbps internet link at your home is nothing. It is common, or you can say it is possible, not a big thing. तो bandwidth जो LAN में हमें मिलता है, so the more bandwidth you get, so 10 Mbps, 100 Mbps, the more data you can transfer. So higher the bandwidth is good. LAN में हमें bandwidth बहुत अच्छा मिलता है। तो आजकल तो गिग स्विचेस आते हैं। गिग स्विचेस मतलब आजकल तो जो लैपटॉप आते हैं उसमें गिग पोर्ट आता है, जो भी पोर्ट आता है वो गिग, लैन कार्ड जो होता है वो गिग होता है, और जो स्विचेस का भी पोर्ट होता है, जो स्विच होता है वो होता है गिग स्विचेस। मतलब गिग स्विच का मीनिंग ये है कि ये 1000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। गिग मतलब 1000 Mbps, that's a huge data transfer for corporate and for office network. For your home, 1 gig LAN port is enough. तो ये in case of LAN, what you get is you get a very high bandwidth. तो यहाँ से यहाँ अगर आपका कोई ये सर्वर है जहां पर आपकी कुछ फाइल्स है,
फाइल सर्वर है। तो यहाँ से यहाँ पर आप आराम से 1 Gbps का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। So the bandwidth is very high. There are some characteristics. So one characteristic is you get a very high bandwidth. The next is the cost of LAN is less. बस एक स्विच लेना है और पीसी तो आपके पास है ही। और ये केबल जो कनेक्ट आप करते हो, ये जो केबल्स होते हैं, ये केबल्स को कहते हैं यूटीपी और एसटीपी केबल, जिसको हम अपने वर्ड में, टेक्निकल वर्ड में कहते हैं ट्विस्टेड पैर केबल। आपने देखा होगा इस केबल को, कई बार देखा होगा। ये केबल कुछ इस तरह से दिखता है। Oh, is it there? It is, the diagram is not there. No issues. ये केबल को आपने कई बार देखा ही होगा। Okay. One second. तो ये केबल कुछ इस तरह से दिखता है और आप में से आपने देखा ही, आपके ऑफिस में ये यूज होता है, आपके घर पे यूज होता है, जिसको हम लैन केबल कहते हैं। इसका टेक्निकल टर्म होता है ट्विस्टेड पैर। इसको ट्विस्टेड पैर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो केबल्स होते हैं, करेक्ट, कैट 5 कैट 6, जिस पे अभी हम आएंगे, केबल्स पे पूरा टॉपिक है। So we'll come and see what is cat 5 cat 6 cat 4 cat 5 cat 6 cables। तो इस केबल को कहते हैं ट्विस्टेड पैर, क्योंकि इसके जो वायर्स होते हैं ना, ट्विस्ट होते हैं। आप देख सकते हो ग्रीन एंड व्हाइट एंड ऑरेंज एंड व्हाइट और ब्राउन एंड व्हाइट, इस तरह से ट्विस्टेड है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्विस्टेड पैर केबल्स। अब इसमें क्वालिटीज आती है, यूटीपी है, एसटीपी है, विच वी विल सी। तो आपको कोई बड़ा कॉस्ट नहीं होता है इसका, द कॉस्ट इज लेस, क्योंकि आपको स्विचेस लेना है, केबल्स लेना है, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट देम एंड दैट्स इट, योर लैन इज क्रिएटेड। So the bandwidth is high, the cost is less, and the ownership is yours. So you are the one who is going to own this, because अगर ये स्विच खराब हो जाता है, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्विच आपने ले आए थे, या आपका कोई आईटी टीम का बंदा होगा, वो उस मार्केट से स्विच ले आएगा, रिप्लेस कर देगा। केबल फॉल्टी होता है, you can just go ahead and replace it. So ownership is yours. If anything happens, then it's you who own this and you need to take care of that. So these are the three characteristics of LAN. You get a high bandwidth, the cost is less of deployment, and the ownership is yours. अब LAN का एक बड़ा वर्जन होता है जिसको हम WAN कहते हैं। चलो देखते हैं what is WAN. So friends, going ahead, the next type of network which is commonly used in the world of networking is WAN, which is wide area network. Now when I talk about WAN, for example, where the WAN is needed, I have two offices. One is in Mumbai, is in Kurla. So in Mumbai, in Kurla, I have an office, and the other office is, for example, it is in Pune. It is in Hinjewadi. So next is, so one time I went to Pune Hinjewadi due to an office visit, and I was dropped at the Wakad bridge, and then I saw that there is a huge traffic there, and you need a bike or you need a car, at least in Pune. At least bike is needed. I think bike is the best thing there. So now I have two offices. For example, one is in Mumbai and one is in Pune. Now if I want to connect them, the first thing is I create a LAN in my Mumbai area, side, and I create a LAN in my Pune side. How? The same thing. We just buy a switch and connect all our network devices, all PC, printers, all of them. And here also we buy a switch and connect all of them. Now, if I want to connect both of my offices, it is not possible to manually connect them. So what do I need is, I need the support of a provider, an ISP.
internet service provider. So I will go for Tata. There are a lot of ISPs, but Tata is the best. They give the best service. So what Tata has done, they have their fiber which is laid out like this. Let us take it with a different color. So it is like this. Now they have laid out this fiber in all the metro cities, and they have different type of connections. So fiber is just one connection. Where they cannot lay fiber, they give Wi-Fi connectivity. Like for example, your office is in one is in Mumbai, but your office is in not in Pune, it is in a remote area or village area where you cannot have fibers, where Tata cannot lay fibers. So they give provide you Wi-Fi connectivity. So the most common is fiber. Now friends, if I want the offices to get connected, then I need to contact the ISP. So ISP will ask me, okay, where is your area, region A, where is your location A, and where is your location B? And after giving them both the locations, I can get my office connected. But you know what I need? I need a router. अब मुझे दोनों साइड लगेगा एक राउटर, और राउटर की जगह कंपनी ने में ले लिया है L3 स्विच ने. मतलब राउटर की जगह आपको एक L3 स्विच भी यूज कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे कि राउटर का काम जो आजकल करता है L3 स्विच. इसके बाद your both of your offices will be connected like this. ये connect. And now if you have a server here, for example you have a domain controller, most of you might be from system admin. So अगर आपका domain controller इधर है, ठीक है, और ये PCS को डोमेन ज्वाइन करना है, तो ये रिक्वेस्ट ऐसा भेजेगा, and it will go via this cable, and it will go here, and it will go here, and it will come here, and then it will reachability will go like this. So now going ahead, so this is how my both of my offices are connected. और इनका एक डुअल फाइबर होता है, सिंगल रिंग नहीं होता, डुअल होता. कभी कभार फाइबर कट भी हो जाता है. पता है आपको कैसे कट होता है? जैसे कि अभी मेट्रो का काम हो रहा है फॉर एग्जांपल, या कोई बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और वो बंदे ने यहाँ से आपकी कंपनी का केबल फाइबर गया हुआ था, टाटा ने ले किया हुआ था, और बेचारे ने गड्ढा खोदा और ये केबल कट हो गया. कट हो गया तो योर लिंक इज डाउन. So common with MTNL and Reliance, right? So I used to work in 2008. I got a job where my job was, मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था. उसमें मुझे 2 MBPS, उस टाइम पे ना 2 MBPS की लीज लाइन होती थी. बहुत पहले की बात है. जैसे आज जो 100 MBPS है, इतना कॉमन है, हर घर में मिल जाता है. इट वाज नॉट लाइक दैट. 2 MBPS वाज अ बिग थिंग. तो at that time MTNL connections were used. So I used to find the MTNL person, वो जो आपको बॉक्स पे आता है, याद है मीटर रीडिंग के लिए लोग आते थे, MTNL के बंदे, छोटा बॉक्स होता था जिनके घर में फोन होता था, तो वो बॉक्स ओपन होता था, तो वो लोग उसके थ्रू दिस कनेक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स वाज प्रोवाइडेड. So going ahead, so this kind of fiber and this kind of cutting down can happen. मतलब ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई रोड, कोई कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से आपका अंडरलाइन फाइबर कट हो गया. नाउ योर लिंक इज डाउन. तो एक फाइबर कट हुआ तो कोई इशू नहीं है, दैट्स व्हाई दे हैव द डुअल फाइबर. तो आपका ट्रैफिक जो है इंटरनली आईएसपी विल मैनेज, और ये आईएसपी आपका ट्रैफिक जो है दूसरे फाइबर से घुमा देगा. कस्टमर को इसका कोई पता भी नहीं होगा, और कस्टमर को इतना इंपैक्ट भी नहीं पता चलेगा, फिकर, मतलब दैट्स व्हाई दे हैव डुअल फाइबर्स, डुअल कनेक्टिविटी. लेकिन जब दोनों फाइबर कट हो जाता है, देन द लिंक इज डाउन. कोई रीजन से तो आपका दोनों फाइबर कट हो गया. समटाइम्स इट हैपन बिग मेजर फाइबर कट, मेजर इश्यू, योर लिंक इज डाउन. अब जब लिंक डाउन हो जाता है, सो द ओनरशिप इज नॉट विथ मी नाउ, ओनरशिप इज विथ आईएसपी. इसीलिए बहुत सारी कंपनीज में व्हाट दे हैव इज दे हैव ए नॉक टीम. तो ये नॉक टीम व्हाट दे डू, दे मॉनिटर. सो नॉक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर. सो ये लोग मॉनिटर करते हैं आपके लिंक्स को, और जैसे ही डाउन होता है लिंक, दे कॉन्टैक्ट दी आईएसपी, देयर इज अ टिकट विद दी आईएसपी. फिर आईएसपी वाला एक्टिव हो जाता है, और फिर आपका सर्किट देखता है, अच्छा ये आपका लिंक है, ओके ये लिंक डाउन है, अच्छा ये प्रॉब्लम है,
or ISPs like Tata, they give proper update that this is the reason the link is down and this is the ATR, estimated response time. By this time your link will get up. They will give you a proper update and they will call you also for a feedback. Yes, so Tata is the best. My personal experience with Tata is the best. So we will talk with of the best, no comparison. Now, NOC team is one of the team which does this job of monitoring. Now friends, in this case of WAN की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम LAN का देखें तो LAN में स्विच खराब हुआ मुझे जाके बदलना, केबल खराब हुआ मुझे जाके चेंज करना है। पर जब मैं WAN की बात करता हूं तो ठीक है, LAN, this is my LAN and this is my LAN, this is handled by me. Two LANs which are geographically separated, one is in one area, one is in other area, which a customer cannot connect, उसको एक ISP की जरूरत लगती ही है, and that kind of network is known as WAN. This kind of network is known as WAN. Two LANs which are geographically separated and you want to connect them. So once you connect them with the help of an ISP, it becomes a wide area network. अब यहाँ पे सिर्फ मैंने दो ऑफिस लिया, आपका कोई और ऑफिस है यूके में, वो भी कनेक्ट हो सकता है, यूके यूएस का ऑफिस वो भी कनेक्ट हो सकता है, ये सब एक दूसरे से रीचेबल हो जाएंगे एंड दैट्स द जॉब ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर, दैट्स द जॉब ऑफ द ISP. नाउ ओनरशिप ISP के साथ होता है. The next is the bandwidth is less. So in case of LAN, you can say I want 1 Gbps. In case of WAN, you cannot say I want 1 Gbps. You know, 1 Gbps, they will say, okay, give me 1 Gbps का तो बहुत बड़ा limit हो गया. 1 Gbps is big thing. 100 Mbps might cost in lakhs. So in WAN, मुंबई पुणे के बीच का जो लिंक होगा, जो लिंक हम जो बैंडविड्थ लेंगे, वो जरूरत पड़ने पे 10 Mbps है, 45 Mbps है, या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो 100 Mbps है या 200 Mbps है. 1 Gbps it is something which is very costly. तो इतनी जरूरत नहीं होती है. नॉर्मली जो डेटा ट्रांसफर होता है हैवी, वो हमारे लैन पर होता है और कुछ कुछ डेटा ट्रांसफर वैन पे होता है. ठीक है, तो इसलिए वी टेक bandwidth which is less because cost is involved, so bandwidth is less. Otherwise everyone would love to take 1 Gbps, but cost is involved and that's what ISPs charge. So depending upon the bandwidth, the cost increases. So bandwidth is less, ownership is of ISP, and cost is more. Cost is also more. So bandwidth is less and cost is more. Why? क्योंकि LAN में आपको राउटर की जरूरत नहीं थी, LAN में सिर्फ स्विच की जरूरत होती है. लेकिन जब आप WAN पर जाते हो तो आपको एक ऐसे नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है और उस डिवाइस का नाम होता है राउटर. तो राउटर आपको दो डिवाइसेस कनेक्ट करने में मदद करता है. तो ऑब्वियसली राउटर का एक कॉस्ट होता है और जो कॉस्ट कंपनी के ऊपर आता है और ये कॉस्ट की वजह से वैन के केस में कॉस्ट बढ़ जाता है. So the bandwidth is less, the cost is more, and the ownership is of ISP. If the link goes down, I will contact the ISP. So friends, I will go back to the chat. MEN device, MEN, I will check what is this. Right now I am not able to decode it. What is MEN device? So I will check and get back. So friends, I hope everyone has a fair idea. Abhishek and Anand and Bag Mirza and Kedar, Mayur and Umkar, Vaibhav, Rahul, Rohit and Rohit Kashid, Sagir, Samir, Samina, Sarush, Satish, Vaibhav. Okay, that's good. Now friends, we will see the cables that are used in LAN. तो LAN पे जो केबल यूज होता है, अच्छा इट इज MAN, मैन. हाँ, एक लैन और वैन के बीच में मैन होता है. अगर आप ये पूछ रहे हो मैन मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब अगर आपका पूछना मैन है तो मैन इज जस्ट अ वर्जन ऑफ वैन. मैन में क्या होगा, both of your offices are in the same metro city. For example, one is in Kurla, other is in Thane, then such kind of network is known as MAN.
So metro cities connection, but normally man word is not used generally. You will always see LAN or WAN. These two are the word which is commonly used. So WAN ka chota version is man, but in production normally you will use the word LAN or WAN. Now friends, going ahead. So this is the PDF, and this PDF is uploaded in the lecture. So this is simple, and two or more LAN connected to each other, but they're geographically separated. Cost is less. Cost is bandwidth is less. Okay, I thought cost is right. And next is we will come to this. Okay, so the type of cables that are used here is a twisted pair. अब twisted pair cable के अंदर, one second, I will just open up that PPT. ओके, तो लैन पर जो केबल यूज होता है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पैर केबल। ये लैन पे भी यूज होता है और वैन पे भी यूज होता है। अब ये जो केबल है इसमें अगर आप इसको कहते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब ये बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है और उसको आप डेली यूज करते हो उस टेक्नोलॉजी को। ये जो आपके पीसी में जो लैन पोर्ट होता है, इस लैन पोर्ट को टेक्निकली इथरनेट पोर्ट कहते हैं। कभी आप आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि उसको इथरनेट पोर्ट कहते हैं। इथरनेट ये टेक्नोलॉजी है, तो इथरनेट टेक्नोलॉजी है, जनरल टर्म इसका लैन पोर्ट है। तो लैन पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज यूज इन लैन एंड वैन। अब पहले लैन पे थी, अब वैन पे भी ये यूज होती है। द नेक्स्ट इज, अगर आपने किसी स्विच पे लॉगिन किया, ठीक है, तो अगर आपने इथरनेट देखा तो इथरनेट का मीनिंग होता है 10 Mbps स्पीड मिलेगा आपको। अगर आपने, आप आगे देखोगे फास्ट इथरनेट, तो इसका मीनिंग होगा 100 Mbps। और गिग इथरनेट अगर आपने देखा तो इसका मीनिंग होता है 1 Gbps। ये क्या, ये किस काम आता है, मतलब जब आप किसी स्विच पे जाते हो तो अगर वहां पर फास्ट इथरनेट लिखा होता है दैट मीन्स इट सपोर्ट्स 100 Mbps। तो ये आगे काम आएगा, ये अभी के लिए तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ही हम स्विच पे जाएंगे CLI पे, सब आप आगे कॉन्फ़िगर करोगे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो सिस्को का या कोई भी स्विच आप लेंगे वो स्विच के अंदर, और ये सब कमांड्स आपको आगे पता चलेंगे धीरे धीरे कमांड्स क्या है। यहाँ पर अगर ये फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि ये स्विच 100 Mbps का बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर यहाँ पर गिग लिखा होता तो इसका मीनिंग है कि जो स्विच आपने खरीदा है या स्विच आपकी जो कंपनी में यूज होता है ये गिग्स की स्विच है, मतलब ज्यादा बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। फास्ट इथरनेट मतलब 100 Mbps सपोर्ट करता है, 100 Mbps का डेटा ले सकता है, 100 Mbps का डेटा भेज सकता है, कम है इसका बैंडविड्थ। और अगर गिग यहाँ पर दिखेगा आपको तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 1000 Mbps और 1 Gbps। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आगे स्विचेस में आप ये ऐसा देखोगे तो आपको देखते साथ ही समझ जाना है फास्ट इथरनेट का मतलब 100 Mbps और गिग इथरनेट का मतलब 1 Gbps 1000 Mbps। So gig ethernet, obviously gig switches are always better than fast ethernet। कॉस्टली भी होता है थोड़ा, बट कंपनी आजकल तो गिग स्विचेस ही यूज होते हैं मैक्सिमम, बिकॉज गिग इज द लेटेस्ट नॉर्म, इट इज द नॉर्मल राइट नाउ। जो केबल्स यूज होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी में, इस इथरनेट टेक्नोलॉजी में, उस केबल को जो हमारे लैन में, इथरनेट टेक्नोलॉजी मतलब इसको आप न्यू समझ सकते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है इथरनेट टेक्नोलॉजी को डिकोड करना तो इसको आप लैन समझिए। जो केबल यूज होता है आपके लैन में उस केबल को कहते हैं ट्विस्टेड पैर। तो ट्विस्टेड पैर केबल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अनशील्डेड, एक होता है शील्ड। अच्छा, आपकी कंपनी में आपके ऑफिस में जो यूज होता है वो होता है अनशील्डेड, उसमें शील्ड नहीं होता, वो इस तरह का होता है। और एक केबल होता है जिसमें शील्ड होता है। अब आपके ऑफिस में भी जो लैन पोर्ट होता है वो ये होता है अनशील्डेड, क्योंकि इसमें शील्ड की जरूरत नहीं होती, शील्ड वाला थोड़ा कॉस्टली होता है। ये शील्ड क्यों होता है, क्योंकि
आपका जो भी डेटा जा रहा होता है ना केबल में, ये करंट के फॉर्म में जाता है। जैसे कि हमारा जो भी केबल है वो डेटा कैसे जाता है, करंट के फॉर्म में। लाइट बंद, कनेक्टिविटी कौन, राउटर बंद, वी कैन नॉट सेंड अ डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा जा रहा होता है वो करंट के फॉर्म में जाता है हमारे केबल से। अब ये अगर आपका ये केबल बाहर से यूज होता है, मतलब आपको बाहर से केबलिंग करना है। देखो हम ऑफिस में बैठे हैं तो कोई इतना टेंशन नहीं है इंटरफेरेंस का, मैग्नेटिक डिवाइसेस का क्योंकि अगर बड़ी बड़ी मैग्नेटिक डिवाइसेस आपके डेटा के आसपास, आपके केबल के आसपास है, तो क्या होता है, करंट को वो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कुछ तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर डेटा विल बी लॉस्ट। तो अगर कोई बड़ा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है और वो डिवाइस की वजह से आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो ये रेकमेंडेड है कि अगर आपको बाहर से केबलिंग करनी है जहां पर बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस लगे हुए, तो ये वाला केबल यूज करो जिसमें शील्ड है। ये शील्ड आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। आप क्योंकि डेटा करंट के फॉर्म में, अगर करंट में प्रॉब्लम आ गया तो डेटा में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इट प्रोटेक्ट्स योर डेटा एंड इट्स ए कवरिंग, सो इट्स ए शील्ड। इसका नाम होता है फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और जो ऑफिस में हम यूज करते हैं, जो हमारे ऑफिस में, घर पे वगैरह जो लैन केबल यूज करते हैं, वहां पर कोई इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं होता है, तो हम अनशील्डेड वाला यूज करते हैं, विच इज बाय डिफॉल्ट लैन केबल, मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब ये होता है ट्विस्टेड पेयर, इसमें टोटल होते हैं 8 केबल्स, 8 वायर, और ये वायर एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। तो ये वो केबल है जो आपके आपके लैपटॉप से आपके स्विच की तरफ जाता है, या जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप से आपके स्विच की तरफ जाने वाला ये केबल यहाँ भी यूज होता है। स्विच से आपके पीसी से आपका स्विच, आपके स्विच से आपका राउटर, ये यहाँ भी यूज होता है। और ये केबल यहाँ भी यूज होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस होता है, वहां से एक डब्बा होता है आईएसपी का, उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग में मक्स। इसका काम जो आईएसपी वाले हैं वो ही जानते हैं। ये मतलब आपका जो है कनेक्टिविटी करता है आईएसपी के फाइबर के साथ, तो इसको कहते हैं मक्स। आपकी कंपनी का जो राउटर होता है वो इसी केबल के थ्रू, जो आपका लैन केबल होता है, उसी केबल के थ्रू ये मक्स से कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से भी मक्स से कनेक्ट होता है, और मक्स के आगे फाइबर केबल होता है। पावर और इथरनेट भी होता है, जिसको हम आगे लेंगे, पीओई जिसको कहते हैं। ये मक्स एक ऐसा डिवाइस है जो आईएस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाटा को कहा कि मेरा मुंबई का ऑफिस है और मेरा पुणे का ऑफिस है, दोनों आप कनेक्ट कर दो, तो ये डायरेक्ट फाइबर मेरे राउटर पे नहीं लगा सकते। गेटिंग द पॉइंट? उनका जो फाइबर होता है वो डायरेक्ट मेरे राउटर पे नहीं लगा सकते, कोई तो होगा जो मेरे राउटर से और उनके फाइबर के बीच में कम्युनिकेशन करेगा, तो उस डिवाइस को कहते हैं मक्स, या एसपी लोग मैनेज करते हैं। टाटा विल मैनेज दिस, ये कस्टमर के पार्ट पे नहीं आता है। ये क्या करता है, एक साइड इसका लैन केबल होता है, तो एक राउटर से आप इसको कनेक्ट कर दोगे, और ये मक्स का दूसरा साइड फाइबर होता है। तो उसी तरह से दूसरा भी एक मक्स होता है जो आपको आपकी कंपनी के यूटिलिटी रूम में दिखेगा, जिसको मक्स रूम भी कहते हैं कंपनी के अंदर, जहां पर सारे आईएसपी का फाइबर आता है, और वो मक्स से फिर बैकएंड में आपके राउटर से कनेक्ट होता है, फ्रंट एंड में वो आपके फाइबर से कनेक्ट होता है आईएसपी के। तो ये जो लैन का केबल है हमारा, ये केबल बहुत ही यूजफुल है। आपको दो ही टाइप के केबल दिखेंगे कंपनी में, एक तो फाइबर केबल दिखेगा जो वैन पे यूज होता है, लैन के अंदर भी यूज होता है, और एक है हमारा लैन केबल जिसको हम कहते हैं यूटीपी केबल और एसटीपी केबल, ट्विस्टेड पेयर। तो ये पीसी से स्विच के बीच में भी यूज होता है, स्विच से राउटर के बीच में भी यूज होता है। राउटर से आप, राउटर का ये हो गया लैन पोर्ट, इसको कहेंगे लैन पोर्ट क्योंकि लैन की तरफ जाता है, और इसको कहेंगे वैन पोर्ट क्योंकि ये वैन की तरफ जाता है, और यहाँ पर भी इसको कहेंगे वैन पोर्ट क्योंकि वैन की तरफ जाता है, और इसको कहेंगे लैन पोर्ट क्योंकि लैन की तरफ जाता है। अब ये जो केबल है ये यहाँ भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है, लैन पे भी यूज होता है, इसलिए मैंने वहां लिखा कि लैन में भी यूज होता है, वैन पे भी यूज होता है। वैन पे एंड टू एंड नहीं यूज होता, लेकिन मक्स तक यूज होता है, फिर मक्स से आगे आईएसपी का फाइबर होता है, फिर आप मेरे पुणे के ऑफिस में मक्स होगा, और फिर वो मक्स से मैं लैन केबल लगाऊंगा मेरे वैन पोर्ट पे राउटर के, और फिर राउटर के लैन पोर्ट से जो केबल जाएगा स्विच में आएगा, और स्विच से फिर यहाँ पर लैन केबल पीसी पे आएगा।
Okay, ISP usually say that main device is down. Okay. PoE हम देखते हैं. Now, going ahead. So where I was at this point. So friends, इसके अंदर जब आप केबल लेने जाओगे, मुझे ट्विस्टेड पैर, मुझे मतलब यूटीपी केबल चाहिए, यूटीपी केबल या मुझे लैन केबल चाहिए, तो आपसे पूछेगा कि क्या आपको कैट 4 चाहिए, क्या आपको कैट 5 चाहिए, या क्या आपको कैट 6 चाहिए, आपको कौन सा केबल चाहिए, कैट 4 चाहिए, कैट 5 चाहिए, ये कैट 6 चाहिए, कौन सा केबल चाहिए. ठीक है, ऐसा वो आपसे पूछेगा. मतलब इन शॉर्ट हमें पता होना चाहिए कि ये केबल क्या होता है, ये कैटेगरीज क्या होती है. तो कैट 4 जो है वो है 100 Mbps, और कैट 5 जो है वो है 1000 Mbps, और कैट 6 जो है वो 10 Gbps तक का सपोर्ट करता है. और ये तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तीनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, देखो केबल है ना, केबल में क्या है, केबल को अगर मैं गौर से देखूं तो उसमें क्या होता है, इट इज लाइक कॉपर और प्लास्टिक. तो कैट 4 केबल के अंदर और कैट 5 केबल के अंदर और कैट 6 केबल के अंदर जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ ट्विस्ट. मतलब जितना ट्विस्ट अच्छा होगा उतना केबल अच्छा होता है, उतना अच्छा वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होते हैं ना उसको क्रॉस करता है वो. जितना ट्विस्ट, ये ट्विस्ट करने का रीजन है, इनका एक टेक्निकल रीजन है, और इससे इंटरफेरेंस जो होते हैं वो नेगेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो यहाँ पर जितना अच्छा केबल होगा, मतलब जितना अच्छा कैटेगरी का आप लोगे, उतना कॉपर अच्छा होगा, ज्यादा होगा, कॉपर स्ट्रांग होगा, और ट्विस्ट अच्छा होगा. अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे, so we go ahead, and if we say that I want to connect two PC switch and the PC1 and PC2, and I want to transfer some data here. Like अगर मैंने यहाँ पर कैट 4 केबल लगा दिया दोनों साइड, तो कितना डेटा ट्रांसफर मुझे मिलेगा. ओके, अगर मैंने दो पीसी लिया, एक स्विच लिया, और कैट 4 केबल लगा दिया, और मैं कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मुझे कितना डेटा ट्रांसफर मिलेगा. अगर मैंने कैट 4 केबल लगा दिया तो ओके 100. अच्छा, मैंने यहाँ पर कैट 5 केबल लगा दिया, तो क्या ये बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा. और क्या मैंने कैट 6 लगाया तो क्या ये 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर करने लगेगा, राइट. द आंसर इज नो. करेक्ट. इसका मीनिंग ये है कि डेटा कितना ट्रांसफर करना है, ये कौन डिसाइड करता है. ये डिसाइड केबल से नहीं होता, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द केबल, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंडर. सेंडिंग पीसी डिसाइड करता है कि कितना मुझे डेटा ट्रांसफर करना है. अगर मेरे पास 100 Mbps का लैन पोर्ट है, आजकल पुराने पुराने लैपटॉप्स में आता है, कुछ कुछ लैपटॉप में 100 Mbps का लैन भी आता है. तो अगर मेरे पास 100 Mbps का लैन पोर्ट है, तो मैं कैट 6 भी लगा दूं तो भी क्या फर्क पड़ता है. गेटिंग द पॉइंट. मेरा पीसी तो 100 Mbps ही ट्रांसफर करेगा. और अगर मैंने दोनों साइड कैट 6 भी लगा दिया, इट सेज दैट आई कैन सपोर्ट 10 Gbps, बट माय पीसी सेज दैट आई कैन ट्रांसफर ओनली 100 Mbps. गेटिंग द पॉइंट. तो केबल जो है, केबल बदलने से काम, मतलब बैंडविड्थ जो है केबल से डिसाइड नहीं होती, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंडिंग पोर्ट. गेटिंग द पॉइंट. लेकिन केबल का इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जांपल, सही केबल लगाना क्यों जरूरी है. लाइक इफ आई हैव द PC1 एंड आई हैव दिस स्विच एंड देन आई हैव PC2, और मेरा पीसी जो है वो सपोर्ट करता है कितना, 1 Gbps. मेरा गिग भी स्विच भी है 1 Gbps सपोर्ट करता है, कहीं पर भी कोई बॉटलनेक नहीं है, ये भी 1 Gbps सपोर्ट करता है, ये भी 1 Gbps सपोर्ट करता है, और मैं जो है 1 TB का डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ. ये 1 Gbps सपोर्ट, 1 GB पर सेकंड का मुझे डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा, Gbps पर सेकंड. ठीक है, 1 GB पर सेकंड में ट्रांसफर होगा. अब यहाँ पर अगर मैंने कैट 4 केबल लगा दिया, गेटिंग द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा,
मेरा पीसी जो है तो 1 Gbps ही ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा हाईवे जिसके अंदर सिर्फ 100 कार जा सकती है और 100 कार ही का रास्ता है, पर आप वहां पर 1000 कार आ गई। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि पीसी डज नॉट चेक द केबल। तो अगर 1000 कार आ जाती है और लेन सिर्फ 100 कार का है, तो पता है क्या होगा? ब्रिज गिर जाएगा, है ना? या तो डेटा भी लॉस हो जाएगा, ब्रिज भी गिर जाएगा। उसी तरह से आपका डेटा लॉस भी होगा और स्लोली स्लोली आपका जो कैट 4 का केबल है ये जल जाएगा, करप्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉल्टी हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए कि जो डेटा होता है वो डेटा करंट के फॉर्म में जाता है, ठीक है, और करंट के फॉर्म में कॉपर पे जाता है। तो आपका जो भी डेटा है, जो भी डेटा आपका है, वो जा तो रहा है करंट के फॉर्म में ना, और जा किस पे रहा है? मीडियम क्या? कॉपर। और कॉपर क्या होता है? जैसे ही ज्यादा, अगर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा देखो 1 Gbps मतलब ज्यादा डेटा मतलब ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट तो कॉपर में उतनी ताकत होनी चाहिए, उतना पावर होना चाहिए कि वो इस ज्यादा डेटा को, ज्यादा करंट को आगे ले जा सके। गेटिंग द पॉइंट? तो कैट 4 केबल कहता है, क्योंकि कैट 4 में कॉपर लेस होता है, डिफरेंस तो यही है, नंबर ऑफ ट्विस्ट एंड कॉपर थिकनेस। तो कैट 4 में कॉपर की क्वांटिटी कम होती है, तो इसीलिए वो बनाया इसीलिए गया कि वो 100 Mbps का करंट संभाल सके। तो उस पर आपने 10 गुना भेज दिया तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और कॉपर मतलब केबल आपका जल जाएगा। तो इसीलिए यू मस्ट गो फॉर either cat 5 or cat 6. So cat 6, cat 5 or cat 6, one of them is commonly used in production environment. Getting the point? So have you got the difference between the categories, and have you understood that the data is transferred is decided by the sender? कितना डेटा ट्रांसफर करना है वो सेंडर का लैन कार्ड डिसाइड करेगा, कितना मुझे ट्रांसफर करना है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि अगर मेरे पास ये स्विच है और ये पीसी है, अब ये दोनों तो 1 Gbps का लैन कार्ड लगा हुआ है, दोनों 1 Gbps सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्विच बेचारा 100 Mbps का आपने ले लिया है। ये भी बॉटलनेक हो गया, इधर डेटा ट्रांसफर हुआ, इधर रुक गया। अब इधर से जो इधर आएगा, क्योंकि इसका पोर्ट तो 100 Mbps का है, तो ये 100 Mbps ही ट्रांसफर करेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये स्विच जो आपका डेटा ये तो भेज देगा, बाद में तो ये बफर कर देगा, ठीक है, और फिर ये धीरे से आगे भेजेगा। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज द स्विच कैन ऑल्सो क्रिएट बॉटलनेक, ठीक है। तो इसीलिए जो स्विच होता है, इसीलिए हम सारी चीजें 1 गिग की लेते हैं। फिर अगर मुझे 1 गिग का सेटअप करना है तो माई लैन कार्ड शुड बी 1 गिग एंड माई स्विचेस एंड माई राउटर्स should support 1 Gbps, then only my network will work flawless. Otherwise कहीं पर भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको bottleneck मानेंगे। Now friends, going to the next point. तो चलो, आपने क्या देखा अभी तक के? लैन को देखा, आपने वैन देखा, आपने ये देखा कि लैन के अंदर यूज होने वाले केबल को इथरनेट केबल, जिसका टेक्निकल नाम है इथरनेट केबल, जिसको हम लैन केबल कहते हैं। ये लैन केबल के अंदर कैटेगरीज आती है, कैट 4, कैट 5, कैट 6। कैट 4 केबल जो है, और इसमें क्या डिफरेंस है? कैट 4 में कॉपर कम होता है, ट्विस्ट थोड़ा बड़ा बड़ा और लंबा लंबा होगा, और कैट 5, कैट 6 में जो कॉपर ज्यादा होगा, ट्विस्ट भी छोटा छोटा होगा, अच्छा बारीक ट्विस्ट होगा, तो इससे इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जस्ट बाय connecting the cat 6 cable, that doesn't mean that 10 Mbps 10 Gbps data will be transferred. Data transfer is decided by the sender, how much I want to transfer. उसके बाद इस केबल के अंदर इसके कुछ पोर्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टर्स। इसके कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहते हैं, RJ45। तो ये कनेक्टर जो आपको दिखता है, जो आपके लैपटॉप में जो लैन पोर्ट होता है, वही शक्ल का वो कनेक्टर होता है। उस छोटे से प्लास्टिक के कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसका कवरेज कितना होता है? मतलब ये केबल की एक ड्रॉबैक है, बहुत सारे फायदे हमने देखे पर इसकी एक ड्रॉबैक है, ये आपके स्विच और आपके पीसी का मैक्सिमम डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी मोर देन 100 मीटर। सो 1 मीटर, आई थिंक इट इज 3.3 फीट, समथिंग लाइक दिस। तो इतना ज्यादा 100 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज डेटा लॉस विल हैपन। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस केबल। बट ये 100 मीटर बहुत हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये लैन में यूज होता है, तो आपका स्विच आपके ऑफिस में नजदीक ही होता है, ज्यादा दूर भी नहीं होता।
सो दैट्स फाइन एंड दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज रनिंग, और इसका कोई अभी तक कॉम्पिटिटर नहीं है और ये कभी रिप्लेस भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कॉस्ट भी इसका लेस है और इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज दूसरे टाइप का केबल, एंड दैट इज नोन एज द फाइबर केबल। तो फाइबर केबल is that they give a very high bandwidth and coverage is up to 100 kilometers, but fiber cable is very costly, and uh, this cables, the data transfer is very fast, it is very quick। तो ये जो फाइबर केबल आपके ऑफिस के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, और आईएसपी तो फाइबर ही यूज करते हैं। आईएसपी लेवल पे दे डू दिस फाइबर केबलिंग एट ए बिग लेवल, बट एट ऑफिस लेवल जब आप आपके डेटा सेंटर में जाओगे तो आप देखोगे सर्वर जो है ना, आजकल सर्वर, वो ये मेरा सर्वर है और मुझे फास्ट डेटा ट्रांसफर चाहिए, तो सर्वर जिस स्विच पे कनेक्टेड होता है, तो ये जो केबल होता है, ये केबल आजकल लैन केबल नहीं यूज होता, मतलब जिन वो कंपनी जिनको डेटा ट्रांसफर फास्ट चाहिए, क्योंकि क्या होता है इन फाइबर ऑप्टिक डेटा इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो जो भी डेटा आप ट्रांसफर करने वाले हो ना, वहां क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो करंट के लिए कॉपर चाहिए, यहाँ पर डेटा इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट के लिए उसका जो लाइट का एक फाइबर केबल का अपना अंडरलाइंग मैकेनिज्म होता है, एंड यू नो लाइट इज फास्ट एंड लाइट इज इवन फास्टर देन साउंड। तो ये कहीं तो मैंने ना अपन, मुझे याद पड़ता है मैंने स्कूल में कहीं तो फिजिक्स की या कोई तो बुक में पढ़ा था, मैंने क्या सबने पढ़ा रहेगा, ठीक है, कि लाइट इज फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ऐसा ही कुछ वर्डिंग्स है इसका। और वो और भी कुछ कुछ चीजें हमें अपनी स्कूल की याद होती है, जैसे न्यूटन्स थ्री लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये खासकर बॉस के केस में अच्छा काम आता है, प्रोडक्शन में और कॉर्पोरेट में बहुत कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट नॉट ऑलवेज रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, बट स्टिल। अब यहाँ पे डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब लाइट जो है बहुत फास्ट होता है, तो आप सोच सकते हो कि मेरा डेटा कितना फास्ट ट्रांसफर होगा, यूं गया और यूं पहुंच गया। तो इसीलिए जो मैं यहाँ बैठे बैठे गूगल का सर्वर एक्सेस कर सकता हूँ, न्यूज डालता हूँ, या मतलब कोई वेबसाइट है, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पढ़ रहा हूँ, या कुछ ऐसा जैसे पेटीएम, या पेटीएम तो चलो है, पेपाल हो गया, इस तरह की कोई वेबसाइट जो इंडिया में है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल दे आर होस्टेड इन यूएस समवेयर, और मैं यहाँ से बैठे बैठे एक्सेस कर रहा हूँ, तो कैसे यहाँ से वहां तक इतना फास्ट ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल फाइबर। नाउ इन केस ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी में कैसे यूज होता है, कंपनी में क्या होता है, कोई कोई सर्वर ना एकदम फास्ट और एकदम क्रिटिकल सर्वर होते हैं, वहां पर आप लेटेंसी मतलब स्लोनेस आपको नहीं चाहिए, वहां पर आप स्लोनेस नहीं है वहां पर हैंडल कर सकते। सो इन दैट केस you can connect your switch to the server using a fiber। अब ये जो फाइबर है, ये फाइबर के लिए सर्वर पे भी कुछ मॉड्यूल्स लगते हैं, सर्वर पर भी मॉड्यूल्स लगेंगे, और स्विच पर भी मॉड्यूल लगेंगे। तो जो स्विच का मॉड्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह के केबल्स होते हैं, इस तरह का मॉड्यूल होता है जो स्विच में इंसर्ट होता है, और फिर ये फाइबर जो है, जिस तरह के आपके लैपटॉप में कैसा एक लैन पोर्ट है ना, ये लैन पोर्ट इनबिल्ट है, फिट है आपके मदरबोर्ड पे, फिट है, ये उसी तरह का है। वो लैन पोर्ट में क्या जाएगा, लैन केबल। उसी तरह से जब आपको आपके स्विच में फाइबर कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो स्विच होते हैं, तो ये स्विचेस के पास बहुत सारे पोर्ट तो आपके लैन पोर्ट होते हैं, इसमें कुछ कुछ पोर्ट, दो चार पोर्ट होते हैं, फाइबर पोर्ट भी होते हैं, दिए हुए होते हैं, जिसको आप फाइबर स्विच कहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पोर्ट्स, कुछ कुछ सिस्को के नेक्सस वगैरह है जिसके अंदर सारे पोर्ट फाइबर है, ऐसे भी है, दे आर आल्सो कॉस्टली एंड दे आर डेडिकेटेड फॉर सर्वर टू स्विच कनेक्शन, ऐसे भी स्विचेस है। और कुछ स्विचेस ऐसे हैं जिनके अंदर लैन पोर्ट भी होता है, फाइबर पोर्ट भी होता है। तो ये फाइबर पोर्ट जो होता है ये एम्प्टी होता है, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना पड़ता है एक मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल इस तरह से दिखता है। अब ये आपने इंसर्ट किया,
इंसर्ट करने के बाद आपने केबल लिया, जैसा आपका लैन केबल है उसकी अपनी एक शेप है, उसी तरह से ये फाइबर केबल है, इसका अपना शेप है। अब इसमें कनेक्टर होते हैं, एलसी कनेक्टर, एससी एंड एलसी। एलसी इज कॉमनली यूज, एससी इज नॉट कॉमनली यूज, बट मैंने फिर भी डायग्राम में ऐड कर दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर। ऐसे यही एसएफपी है। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ एसएफपी? एसएफपी क्या होता है, ये आपके स्विच में लगता है। ये स्विच में, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्विच, एंड मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एक स्विच के साथ अगर डायग्राम के साथ बता सकूं तो ज्यादा अच्छा होगा। गिव मी सम टाइम। तो ये है एक सिस्को का स्विच, जैसे ये एक स्विच है, ये स्विच के अंदर आप देख सकते हो लैन पोर्ट भी है और फाइबर के लिए भी मॉड्यूल दिया हुआ है, एम्प्टी है, 4 स्लॉट है, एम्प्टी है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इस तरह से आपका जो है फाइबर का मॉड्यूल ये स्विच के अंदर इंसर्ट होगा। कौन सा मॉड्यूल? ये वाला मॉड्यूल जो मैंने आपको अभी बताया, ये मॉड्यूल जो है, ये एसएफपी जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर इंसर्ट होगा और फिर इसके अंदर ये आपका फाइबर केबल लगेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये मॉड्यूल आपके करंट को, मतलब ये देखो ये स्विच तो करंट पे ही काम करता है, तो आपके इस करंट को, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, तो आपका जो डेटा है जो करंट के फॉर्म में जा रहा है उसको लाइट में कन्वर्ट करता है ये मॉड्यूल और फिर ये फाइबर पे भेजता है। गेटिंग द पॉइंट? इसके अंदर जब आप इस मॉड्यूल को देखेंगे तो इसके अंदर ना एक लाइट का सोर्स होता है, एक लाइट का बीम होता है, यहाँ पर अंदर एक बीम होता है जो कि लाइट भेजता है। तो वॉट एवर डेटा, दिस इज कनेक्टेड टू योर स्विच, तो वॉट एवर डेटा यू आर सेंडिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट। वो स्विच पे आता है करंट 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 करंट, जब यहाँ पे जाता है तो इट इज कन्वर्टेड, कम्स टू द मॉड्यूल, इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इट इज सेंड ऑन द फाइबर केबल। गेटिंग द पॉइंट? So conversion from current to light and from light to current is the job of this SFP module. Now let us go ahead. अब ये बहुत बहुत सारी कंपनी में ये यूज होता है, मतलब मैंने तो बहुत सारी कंपनीज में इसको देखा भी है और मैंने इसको इस पे काम भी किया है। तो हम जहाँ पे यूज करते थे इसको ज्यादातर, देखो क्या होता है कंपनी के सेटअप में, आपके पीसी से आपका स्विच, ठीक है, यहाँ पर हम फाइबर नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर फाइबर केबल नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते पता है? स्विच कहाँ पर होता है? यूजर के पास। एक तो फिजिबल भी नहीं है, यूजर ने एक पैर मारा 4000 का फाइबर केबल हो गया, फॉर एग्जाम्पल 3000 का फाइबर केबल है, ये कॉस्टली होता है और ये ले भी नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, बट जस्ट फॉर एन जोक। इसने एक एक लात मार दिया, बेचारे ने पैर में आ गया, फंस गया, केबल गोल गोल हो गया, टूट गया, ठीक है। सो बिकॉज लैन पोर्ट इज, द लैन केबल इज रोबस्ट, इट इज स्टडी, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सो लैन पोर्ट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द स्विच आर द यूज्ड फॉर डायरेक्टली कनेक्टिंग सर्वर्स। यस, पुराने जमाने में और अभी भी कोई कोई बहुत सारे कंपनीज जो है जिनको फाइबर नहीं चाहिए, वो लोग डायरेक्ट आपके स्विच से डायरेक्ट लैन केबल लगा देते सर्वर पे, हो गया कनेक्टिविटी। तो आपका ये नॉर्मल सर्वर है जिसमें आपकी कंपनी के अंदर ही आपको यूज करना है, तो व्हाई टू इन्वेस्ट ऑन फाइबर? क्योंकि फाइबर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और वो इन्वेस्टमेंट उसी सर्वर पे किया जाता है which is the heart of the company, which is the most critical server of the company. Getting the point? Rest all the servers are connected via LAN port. Now friends, ये कौन सा केबल कहाँ पे यूज होता है? तो यहाँ पर जो केबल यूज होता है वो होता है LAN केबल। अच्छा, उसके बाद
अगर आपका एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट करना है तो यू कैन यूज लैन केबल हियर आल्सो, here also you can use, but some companies they prefer to use here fiber. ठीक है, वो क्या करेंगे, फाइबर का मॉड्यूल इंसर्ट कर देंगे और फाइबर केबल यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज इन फाइबर डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो यहाँ से यहाँ एकदम फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा, है ना. सो इट इज कॉमनली यूज एज एन अपलिंक, and it is commonly used when you want to connect to server. Options there, you can connect via LAN cable, but it is optional where you want the data transfer should be fast. Then you can use fiber cable here also. Getting the point? So I hope you have a better picture right now where what is LAN cable, what is fiber cable, where it is used in your offices, right? Can I go to the next point? Okay, so Abhishek, Anand, and Bag Mirza, Kedar, Mayur, Omkar, and Vaibhav, Rahul, Rohit. So we have two Rohit, okay. Sagir, Samir, Samina, Sarosh, Satish, Vaibhav. Okay, that's good. Now, friends, we will go to the next and very important point of networking, and that is take, and that is understanding about IP communication. So I'm just getting a call from, I just got it become a missed call. So from the support team, I think he has something which is very important. So please give me 2 minutes to talk with him. Okay. So I'm on mute right now. This conference will now be recorded. Now friends, we will understand what is type of IP communication. Now in this type, the one is unicast. अभी unicast क्या होता है? यूनिकास्ट का मीनिंग होता है वन टू वन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के ना नेटवर्किंग में तीन टाइप होते हैं, तीन ही टाइप होते हैं, और इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है यूनिकास्ट. यूनिकास्ट का मीनिंग होता है वन टू वन कम्युनिकेशन. मतलब सेंडर जानता है कि रिसीवर कौन है. जैसे ए डायरेक्टली बी से बात करता है तो ए को पता है कि ये बी है. ये हो गया यूनिकास्ट. द सेंडर नोज अबाउट द रिसीवर डायरेक्ट. जैसे आपको अतारी क्लास से डायरेक्ट मैसेज आया कोई ना कोई मार्केटिंग का मैसेज डायरेक्ट आपके इनबॉक्स या मैसेज में आ गया. दैट इज यूनिकास्ट कम्युनिकेशन about, okay, I will repeat that. So that is unicast communication about from Atari classes. The next is, ये देखते हैं फिर आपका केस लेते हैं वैभव. अब देखते हैं यहाँ पे यूनिकास्ट इज वन टू वन. मल्टीकास्ट क्या होता है? अगर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में वन टू ग्रुप होगा, मतलब सेंडर wherever you go the sender is same, the sender is single. सेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंडर will be always single. So sender is A, sender and the group is the receiver. मतलब अगर सामने एक ग्रुप है तो इस टाइप को कम्युनिकेशन को कहेंगे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन. बिकॉज इन नेटवर्किंग देयर इज ऑलवेज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर. सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो ही नेटवर्किंग होगा, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की बात होती है. अब कम्युनिकेशन अकेले में तो होगा नहीं. कम्युनिकेशन के लिए यू नीड टू हैव अ सोर्स एंड यू नीड टू हैव अ डेस्टिनेशन. द वे वी कनेक्ट ऑन फोन टू समवन, राइट? कॉलिंग, if I am calling at my home, then I am the sender and there is a destination at where I am calling. The same way networking में you have a sender and then you have a receiver. पर जब रिसीवर एक ग्रुप होता है तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को कहते हैं मल्टीकास्ट. और जब रिसीवर एक, जैसे कि आप के इस CCNA ग्रुप को कोई मैसेज आ गया अत्तारी क्लास से, ठीक है, दैट इज अ मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अत्तारी क्लास. द नेक्स्ट इज, अगर कम्युनिकेशन कुछ ऐसा है कि सेंडर ए है और रिसीवर ऑल है, सब लोग के लिए, सबके लिए. So in that case, this kind of communication is known as a broadcast. Broadcast is, it is for all. यहाँ पर डेस्टिनेशन में सबके लिए है. तो
दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। और जैसे कि अतारी क्लास से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सबको चला गया जो अभी चला था बीच में, तो कम्युनी मैसेज फॉर एवरीवन, that kind of message is known as a broadcast message. So friends, I hope you have a fair idea about unicast, multicast and broadcast. अब ये सब आगे आएगा। आप unicast communication भी आगे देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये unicast है, ये multicast है और ये broadcast है। पर आपको ये याद रखना है कि unicast meaning से one sender one receiver, multicast meaning one sender one receiver is group, and broadcast meaning one sender and everyone is the receiver. Getting the point? Can I go to the next thing? Okay, now friends, let us go ahead and I will come at the top, and that is Vaibhav has asked, sorry, okay, we brief about LC and SC. So LC and SC are the two fiber types, that is the connectors. तो पहले जो है कोई कोई जगह पे आप देखोगे तो आपको SC मॉड्यूल दिखेगा और कोई जगह पे आप देखोगे तो आपको LC दिखेगा। आजकल तो ज्यादातर LC यूज होता है। LC अगर आप देखोगे सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, सिस्को स्विच विद फाइबर पोर्ट LC। तो नॉर्मली जो छोटा सा पतला सा स्लिम सा आजकल जो केबल यूज होता है वो होता है LC केबल, और LC केबल इज द कॉमनली यूज। आपको पता भी नहीं रहेगा, बस कंपनी में आपको फाइबर केबल दे देंगे और आपको कनेक्ट करना होगा और वो होगा LC केबल। वो दिखता बस ऐसा है छोटा सा। और पुराने कुछ कुछ ये जो होता है ना पतला जो एकदम स्लिम ट्रिम होता है, ये होता है LC एंड इट इज द कॉमनली एंड हेवीली यूज। एक पुराना भी होता है SC जो मैंने बहुत पुराने पुराने स्विचेस में देखा था, तो अभी शायद मिले ना मिले इसके अंदर। ये थोड़ा सा मोटा सा होता है और SC का कनेक्टर थोड़ा सा हैवी होता है एज कंपेयर टू LC। तो ये ज्यादा इतना यूज नहीं होता, ये पुराने स्विचेस में मैंने देखा था इसको, जैसे कि पुराने स्विचेस के मॉडल्स होते थे 6513 एंड 6509 उसमें। सो नाउ फ्रेंड्स गोइंग अहेड, अब हम चलते हैं आगे। और कहाँ है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, तो मैक एड्रेस क्या होता है? वैसे तो हमें पता है कि हम सबको पता ही है कि मैक एड्रेस क्या है, बट फिर भी एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग का जो बेसिक कवर करते हुए, इट इज ऑल्सो नोन एज L2 एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ये जब आप लैपटॉप या पीसी या जो भी डिवाइस नेटवर्क डिवाइस खरीदते हो, जब उसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप ये उसको मिलता है, मैन्युफैक्चर के साथ मिलता है मैक एड्रेस, आपको देने की जरूरत नहीं है। It is by default which you get. It is known as L2 address also. Now, why it is known as L2? You will come to know in the topic of OSI model. OSI model में आपको ये क्लियर होगा कि इसको L2 क्यों कहते हैं। इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये फिजिकल लेवल मतलब फिजिकली उसके साथ एसोसिएट होता है डिवाइस के साथ, और ये हम नहीं देते, ये बाय डिफॉल्ट आता है। Next is IP address. IP address like 192.168.1.1 something like this. It is which you give. It is also known as L3. Why L3 OSI में समझ में आएगा। It is known as logical, मतलब ये आप चेंज कर सकते हो, ये physically binded नहीं है, ये logical है, you can change it. So if I want to see in my LAN card, मैं इस वक्त वायरलेस से कनेक्टेड हूँ और मेरा फिजिकल एड्रेस ये है, ये मेरा मैक एड्रेस है जिसको मैं L2 एड्रेस भी कहता हूँ, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और ये मेरा IPv4 जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको हम लेवल 3 एड्रेस भी कहते हैं, L3 एड्रेस भी कहते हैं। So we will see why they are known as L2 and why they are known as L3 just now, and both of these are required. मैं IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस ये दोनों रिक्वायर्ड है। मतलब जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं अपने फ्रेंड को तो हमारा फ्रॉम का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है ना? उसी तरह से ये सोर्स में ये रिक्वायर्ड होता है नेटवर्किंग में कि आपके पास मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होना जरूरी है। होगा तो ही कम्युनिकेशन होगा, दोनों में से एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा कम्युनिकेशन। सो बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज which is a very important topic which is known as OSI model. So friends, can I go ahead to the
critical topic of today, and which is the heart of your networking, which is OSI model. ये आपको समझ में आ गया, मतलब आपने नेटवर्किंग पे एक अच्छा कैप्चर कर लिया, ये नेटवर्किंग का हार्ट है. Now going ahead, OSI model was created for a purpose. अब OSI एक मॉडल है. अच्छा, ये क्यों क्रिएट किया गया था? इसका अपना एक रीजन था. तो रीजन कुछ ऐसा था कि एक टाइम पे ना वेंडर्स की मोनोपोली होती थी. फॉर एग्जांपल सिस्को ने एक स्विच बनाया, सिस्को स्विच. नो at that time, for example, this is Juniper switch. नो अगर OSI मॉडल नहीं था तो यहां से आपने सिस्को का स्विच लगाया आपकी कंपनी में, तो यू कैन नॉट हैव ए जूनिपर स्विच, और इफ यू हैव ए जूनिपर स्विच यू कैन नॉट हैव ए सिस्को स्विच. इफ यू हैव सम अदर वेंडर स्विच लाइक डेल एचपी, यू कैन नॉट हैव अदर वेंडर स्विचेस. सो इस तरह से होता होता था. तभी तो OSI मॉडल 1980s के टाइम पे OSI मॉडल क्रिएट हुआ. और ये क्रिएट किसने किया? ये क्रिएट किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका काम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि कहाँ पे मोनोपोली हो रही है और वहां जाके ये लोग अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO, क्रिएटेड OSI मॉडल इन 1984. अब ये लोग ने मॉडल बनाया और ये कहा कि चाहे सिस्को का स्विच हो यहाँ पे या जूनिपर का स्विच हो, कम्युनिकेशन होना ही चाहिए. कम्युनिकेशन एक ऐसे स्टाइल में होगा, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से होगा. जैसे इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज विच एवरीवन नोज. सो अगर कोई इंग्लिश में बात करता है, जैसे अब ये बंदा कोई एक फ्रेंच है और एक जापानीज है, नाउ दे कैन नॉट कम्युनिकेट because their protocol and everything is different. But if this person knows English, this person knows English, then they can communicate because now they are on a common standard. The same way आपका डेटा ये पीसी से निकलेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या काम करेगा, फिर स्विच आगे भी जो भेजेगा, ये डेटा में भेजते वक्त क्या लगेगा, ये सब ये लोग ने पूरा एक स्टैंडर्ड जो हम समझेंगे ये सब क्रिएट किया था, ताकि कोई भी स्विच है, कोई भी राउटर है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेंडर, communication, end-to-end communication will happen following the OSI model. So now friends, going ahead, OSI model standardization and interconnection between vendors. Okay, OSI model consists of 7 layers. अब ये 7 layers बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें आता है फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर. तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? Physical data link, network, transport, session, presentation and application layer. So there are total 7 layers defined in the OSI model. अब physical layer में क्या होता है ये हम देखेंगे, data link layer में क्या होता है ये भी हम देखेंगे, network layer में क्या होता है, transport layer में क्या होता है, session, presentation and application layer में क्या होता है, ये सब हम देखेंगे. तो इसमें आपको इस डायग्राम में ये समझना है कि जो सेंडिंग पीसी होता है, the PC which is the sender, that is you. For example, you open up the Chrome browser and you type in google.com and you type in news. So news is my favorite example. And in this case, this is the Google server. So your traffic will follow this OSI model. ये क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन पे जाएगा, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, फिर ये करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ये आपके स्विच के पास जाएगा और राउटर के पास जाएगा और फिर धीरे धीरे गूगल के सर्वर के पास जाएगा, फिर उसके फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये ऐसा जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? 7 to 1. और जो रिसीविंग में क्या होगा, 1 to 7. सो सगीर सेज प्लीज डू नॉट थ्रो माय सॉस एंड पिज्जा अवे. हाँ, इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो समोसा एंड पकोड़ा अवे. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट थ्रो समोसा पकोड़ा अवे.
ये थोड़ा इंडियन लगेगा, ठीक है, सही है, सॉस और पिज्जा भी सही है। तो अब तो आपने सबके मुंह में पानी लेके आ गए, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, यू आर एट होम, यू कैन रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्डर, यू कैन रिक्वेस्ट at your home and things will get done. So now that's a big thing. Because of COVID, Tari classes went online and you can learn from the comfort of your home, but only thing required is focus. Now going ahead, so is it clear that the data will go follow the model? A model we will understand, but 7 to 1 physical application, presentation, session, transport, network, data link, physical, and okay, please do not test. Okay, this is also funny. Now physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. Done. Can I go to the next point? Okay, that's good. So let us go ahead and physical and data link and network and session and presentation and application and transport layer. Let us understand all these layers in depth. तो physical layer तो सबसे simple है. Physical layer में क्या होता है कि वो चीजें जो आपको फिजिकल दिखाई देती है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि फिजिकल लेयर में यहाँ पे क्या होगा? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना, LAN cable or fiber cable. These cables will be in the physical layer. Getting the point? So you can touch cables, correct, cables, connectors, all these things, you know, physical layer as a part of networking. स्विच में एक लेवल आ जाएगा, स्विच L2 माना जाएगा, स्विच क्योंकि स्विच L2 लेवल लेयर 2 पे काम करता है, क्योंकि उसमें मैक्स समझने की पावर होता है, इसीलिए यहाँ पर हब आ सकता है. पुराने जमाने में एक हब होता था, वो आ सकता है. सो हब इज कंसिडर्ड एज फिजिकल लेयर. So we will see that. But anything which is physical in nature, like the LAN cable, the fiber cable, the connectors, you know, physical layer is one of the important part of troubleshooting which people ignore. You might troubleshoot everything और बाद में आपको पता चलेगा, अरे यार वो दो स्विच के बीच का केबल फॉल्टी था, वो स्विच और राउटर का केबल फॉल्टी निकल गया, वो स्विच और सर्वर का केबल फॉल्टी था. ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है. तो हम लोग एक बार, लाइफ का एक होता है कि एक बार धोखा खा लिए बस हो गया. पहले सारी ट्रबल शूटिंग के साथ केबल भी, तो हमारे पास केबल टेस्टर्स भी होता था. मतलब अगर आप डेटा सेंटर में जाते हो तो वहां पर तो ये सारे टूल्स होते ही है, केबल टेस्टर. सो यू कैन कनेक्ट टू बोथ ऑफ द केबल और वो उसमें ब्लिंक होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल टेस्टर, जिससे आप केबल को टेस्ट कर सकते. तो गोइंग हेड, anything which is physical in nature, line tester, cable tester, right, और फ्लूक टेस्टर भी मैंने यूज किया, वो बहुत एडवांस लेवल का टेस्टर होता था, बहुत साल पुरानी बात है, फ्लूक टेस्टर, फ्लूक. नो गोइंग अहेड, सो फिजिकल लेयर, फिजिकल इन नेचर एंड यूज फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस. ठीक है, मतलब OSI मॉडल से ना यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रबल शूट. So if you have a very good understanding of OSI model, it will help you in troubleshooting. तो फिजिकल लेयर के अंदर वो चीजें आ गई जो आपको फिजिकली दिखती है. डेटा लिंक लेयर में क्या है? डेटा लिंक लेयर में वो सारी चीजें होती है जैसे कि मैक एड्रेस. सो मैक एड्रेस कम्स इन द डेटा लिंक लेयर. मैंने OSI मॉडल जब आप थोड़ा सा गूगल आउट करोगे तो आपको लगेगा अरे इट्स वेरी बिग एंड देयर आर बुक्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दैट. मैंने जितना जरूरी है OSI मॉडल में, जितना हमें समझना है उतनी चीज लिख दिया. मतलब इतना आपने समझ लिया, प्रोडक्शन में उतना ही रिक्वायर्ड है. सो मैक एड्रेस कम्स इन दिस लेयर. अगर जब भी लेयर 2 की बात आएगी आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पर मैक एड्रेस आता है. अब वो डिवाइस जो मैक एड्रेस समझ सकता है वो होता है स्विच. तो स्विच
को हम कहते हैं इट्स ए लेयर 2 डिवाइस, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्विच में वो पावर है कि वो मैक एड्रेस को समझ सकता है और मैक एड्रेस के बेसिस पर डिसीजन लगता है। तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस आता है, मतलब मैक एड्रेस यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप यूं समझिए कि आप आपके फ्रेंड को एनवलप भेज रहे हो, जैसे तो एनवलप में क्या होगा, फ्रॉम एंड टू होगा, है ना, फ्रॉम होगा और टू होगा। हमारे केस में नेटवर्किंग में 3 फ्रॉम होते हैं और 3 टू होते हैं, मतलब 3 बार फ्रॉम का एड्रेस लगता है अलग अलग अलग, और 3 बार टू का एड्रेस लगता है। एक फ्रॉम का एड्रेस है सोर्स मैक, क्या है, सोर्स मैक, और ये एक है डेस्टिनेशन मैक। तो जो सोर्स मैक होता है वो डेटा लिंक लेयर पर क्या लगता है, सोर्स मैक एड्रेस लगता है। गेटिंग द पॉइंट? तो सोर्स मैक एड्रेस इस लेयर पर लगता है, और सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक मतलब आपका जो पीसी है उसका जो मैक एड्रेस होगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। देखो, आपको न्यूज भेजना है ना, न्यूज आपने गूगल ऑन किया, आपने न्यूज टाइप किया, ये न्यूज का वर्ड बिना ओएसआई लेयर को फॉलो किए आपके गूगल तक नहीं पहुंच सकता। मतलब आपने बिना एनवलप बने, एनवलप मतलब पैकेट, बिना पैकेट बने आपने क्या किया है, आपने जैसे एनवलप के अंदर लेटर है तो लेटर तो आपने लिख दिया है, लेटर को समझो कि न्यूज, ये आपका लेटर हो गया। अब एनवलप के अंदर फ्रॉम एंड टू है तो ये एनवलप को यूं समझेंगे आप पैकेट, ये पैकेट कैसे क्रिएट होगा, ये पैकेट क्रिएट होने होगा और होने के बाद में फ्रॉम एंड टू लगेगा। ये सब कौन लगाएगा, ये सारा डेटा लिंक, ये जो ओएसआई मॉडल है इसके हर लेयर से आपका ट्रैफिक गुजरेगा और उसके बाद ये सारे हेडर्स लगेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो आपका जो न्यूज का वर्ड है ये डायरेक्ट गूगल तक नहीं पहुंच जाता, ये ओएसआई मॉडल को फॉलो करता है और वहां पर हेडर्स लगते हैं। और जब ये डेटा लिंक लेयर पर आता है आपका, फ्रेम और पैकेट सब इंटरचेंजेबल वर्ड है, फ्रेम, सेगमेंट और पैकेट, ये सारी चीजें एक दूसरे एक ही है, मतलब इसमें हल्का सा फर्क है, इसका जनरल वर्ड पैकेट यूज किया जाता है। तो जब वो डेटा लिंक लेयर पे होता है तो फ्रेम कहते हैं, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है तो सेगमेंट कहते हैं, पर अभी हम इसको थोड़ा सा रखेंगे आगे के लिए। नाउ फ्रेंड्स, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस होता है और पैकेट के अंदर मतलब एनवेलप पर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक का जो एड्रेस होता है वो डेटा लिंक लेयर पर लगता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, पर ये चीजें आपको याद होना जरूरी है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? कैन आई गो अहेड? डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस लगता है, मतलब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक मतलब ये मेरे पीसी का मैक, कहाँ गया भाई, ये मेरे पीसी का मैक, ओ गलत कनेक्शन हो रहा है, ये जो मैक है ये मेरे पीसी का मैक है, ये लगता है। और डेस्टिनेशन मैक मतलब सामने वाले का मैक लगता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर एक होता है। नेटवर्क ओएसआई के नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, हर लेयर पे कुछ तो होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पे फिजिकल होता है, लेकिन डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस लगता है। उसी तरह से नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे ओएसआई मॉडल की आईपी एड्रेस लगता है, यहाँ पर इसको लेयर 3 कहते हैं, और यहाँ पर आईपी एड्रेस लगता है, मतलब सोर्स आईपी, आपका आईपी और गूगल का आईपी, आपको जहां जाना है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। आपके न्यूज के वर्ड को जब भेजना है तो उसमें जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगेगा तभी तो पहुंचेगा ना गूगल तक के। तो कौन से लेयर पे लगता है, ये नेटवर्क लेयर पे लगता है। नेटवर्क लेयर आपके न्यूज के वर्ड को सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगाता है। सोर्स लगाना जरूरी है, तभी तो गूगल आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए सोर्स भी चाहिए, डेस्टिनेशन भी चाहिए। आपने आपके दोस्त को लेटर भेज दिया, तो जब उसको लेटर का रिप्लाई देना होगा तो आपका फ्रॉम जरूरी होगा, और वो रिप्लाई के वक्त रिवर्स हो जाएगा, आपका फ्रॉम टू बन जाएगा, टू फ्रॉम बन जाएगा। तो सिंपल, इसको अगर आप एनवेलप या एक पोस्ट किए से कंपेयर करो तो एकदम इजी हो जाता है। द नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर
सेशन लेयर हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ओएसआई मॉडल का जो सेशन लेयर है, तो सेशन लेयर ये कहता है कि क्या कहता है, चलो देखते हैं। सेशन लेयर ये कहता है कि दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच क्रिएट सेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। तो बोलता है डेटा भेजने से पहले ना सेशन बना दो, मतलब तुम्हारा जो न्यूज का वर्ड है उसको भेजने से पहले गूगल के साथ ना एक सेशन बनाओ, उसको जगाओ, ताकि पता तो चले कि मैं गूगल से कनेक्ट हो सकता हूँ, फिर न्यूज का वर्ड भेजो। गेटिंग द पॉइंट? डायरेक्ट न्यूज का वर्ड मत भेज दो, पहले सेशन बना। तो हमारा जो सेशन लेयर है, जो सेशन लेयर है, इसमें ये काम होता है। पर हमारा जो नेटवर्किंग का की जो इंटरनेट की जो दुनिया है, उसके अंदर सेशन लेयर खाली है। मतलब ये लोग ने जो इंटरनेट का मॉडल बनाया है, इंटरनेट की दुनिया में सेशन लेयर का कुछ काम नहीं है, सेशन लेयर खाली है। सेशन लेयर का काम इंपॉर्टेंट है, ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। हाँ, सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत बड़ा है तो मैंने उसको बाद में ले लिया। केदार भाई ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। तो क्योंकि वो बड़ा लेयर है, सेशन लेयर का सेशन क्रिएट करने का काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो हमारी इंटरनेट की दुनिया में कहा कि सेशन लेयर में अलग काम देके क्या फायदा है, वो काम तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में हो ही रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। तो देयर इज नो सेशन लेयर इन इंटरनेट मॉडल। नाउ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर भी दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ, मैं पूरा रिवाइज करूंगा 2 से 3 बार, इसीलिए आपको टेंशन लेना नहीं है, जस्ट स्टे विथ मी। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर which encrypts code. Okay, just 1 second, friend. I just got a call from the support. This conference will now be recorded. Okay, so I will repeat this multiple times, so do not take any tension. Presentation layer में क्या होता है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच एनक्रिप्ट कोड, मतलब जो न्यूज का वर्ड है वो आपका एनक्रिप्ट करके भेजेगा, एकदम हिडन करके भेजेगा गूगल को। ऐसा कोई डिफॉल्ट हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में डिफॉल्ट एनक्रिप्शन नहीं है। सो देयर इज नो प्रेजेंटेशन लेयर इन इंटरनेट मॉडल। ओएसआई ने बनाया है कि ये लेयर पे ये होना चाहिए, ये लेयर पे ये होना चाहिए, ये लेयर पे ये होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज फॉलो की जाएगी, क्योंकि इंटरनेट में वो जरूरत ही नहीं है, एनक्रिप्शन का उन्होंने मैकेनिज्म दिया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास एनक्रिप्शन का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो डिफॉल्ट भेजते वक्त एनक्रिप्ट कर सके। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एम्प्टी होगा। एप्लीकेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन लाइक एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। अब मैं इसको रिपीट करूंगा स्लोली स्लोली पूरा सा, तब आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा कि हम क्या बात को डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ वी विल गो अहेड and I will go at the top. So I'm back here. Now friends, the first is application layer. User, हाँ, encryption, that is HTTPS is an encryption, but वो आपको अगर encryption आपको चाहिए, जैसे HTTPS है, तो ये आपको करना पड़ता है ना, सर्वर साइड पे आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा और एनक्रिप्शन कस्टमर को क्रिएट करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? बाय डिफॉल्ट नहीं है, मतलब ये कैसा डिफॉल्ट है, सोर्स मैक लग जाता है, सोर्स आईपी लग जाता है, चीजें खुद से हो जाती है। ऐसा डेटा खुद से एनक्रिप्ट होके नहीं जाता, क्योंकि सामने वाले को डिक्रिप्ट करने के लिए तो ये लोग ने, क्योंकि एनक्रिप्शन इज अ टफ थिंग, सो दे हैव केप्ट दैट ऑन दी कस्टमर। सो जिनको एनक्रिप्शन करना है वो एसएसएल यूज करेंगे। करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, गोइंग अहेड, अब हम देखते हैं कि वी आर एट अ सेंडिंग पीसी। अब अगर हम सेंडिंग पीसी पे है, अब मैं एकदम सिंपल इसको लेने की कोशिश करते हैं। I'm here and I just open up my Chrome browser and I type in google.com and I type in the news word, and this is Google server. This is my IP, for example, 192.168.1.1, and this is my MAC address. This is a dummy MAC address AA, and this is, for example, BBB, and this is the IP of Google, like any IP address. Now friends, going ahead, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लेयर पे रहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन होता है, मतलब याद रखिए कि
Chrome browser is not an application. Browsers are not applications. Browser, Chrome browser, Mozilla, Firefox, Edge, all these things are browsers. They are not application. Application क्या है फिर? आप यहाँ पर HTTP टाइप करते हो ना, HTTP, ये एप्लीकेशन है। आप HTTPS टाइप करते हो, वो एप्लीकेशन है। आप FTP टाइप करते हो, ये एप्लीकेशन है। गेटिंग द पॉइंट? आप MSTSC करते हो, वो एप्लीकेशन है। तो उसके लिए आपके लिए अलग विजार्ड खुल जाता है। ब्राउजर के अंदर आप क्या कर सकते हो? HTTP, HTTPS, FTP, राइट? आप जब MSTSC करते हो तो दैट इज डिफरेंट, सो दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, ब्राउजर इज नॉट एन एप्लीकेशन. Application is like HTTP, HTTPS, FTP, RDP, all these things are known as application. Getting the point? तो ये एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब जहां से आप हिट करते हो एप्लीकेशन, मतलब किसी ने, समझने के लिए यूं समझिए कि सर्वर किसी ने क्रिएट किया है, वेब सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है? तो उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, वो वाला वेब सर्वर का आईएस का रूल इंस्टॉल किया। अगर आप विंडोज से हो तो, अगर आप लिनक्स हो तो अपाचे आपने इंस्टॉल किया, वेब सर्वर बना दिए, तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और ये आपका एप्लीकेशन बन चल गया, ठीक है? वेब सर्वर बन गया। तो ये एप्लीकेशन का मीनिंग ये नहीं है, ब्राउजर इज नॉट एन एप्लीकेशन। सर्विसेज आर एन एप्लीकेशन ईयर। जो भी आप सर्विस हिट करना चाहते हो, लाइक HTTP, HTTPS, FTP and all these things, they are considered as application. So they come at the application layer. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं गया, अब ब्राउजर तो मुझे मदद करता है बस एक्सेस करने में। अब ये मैं गया और मैंने HTTPS टाइप किया, HTTP टाइप किया, FTP टाइप किया। So this is the application which I am hitting. I am hitting HTTPS, I am hitting HTTP, that is web server application. तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में ये हो गया। प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है, हमारे पास सेशन लेयर नहीं है, तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो लेयर है ही नहीं। सेशन लेयर का काम, प्रेजेंटेशन का लेयर का काम क्या है? कोई बता सकता है? किसी को याद है? प्रेजेंटेशन लेयर, इफ यू रिमेंबर, एनक्रिप्शन, राइट? प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में था एनक्रिप्शन, करेक्ट? तो एनक्रिप्शन का तो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, ठीक है? आपको एनक्रिप्ट करना है तो आप आपके एप्लीकेशन पे कर दो, मतलब आप HTTPS बना दो तो एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब ये सर्वर वाले जानते हैं, हाउ टू मेक HTTP, HTTPS, हाउ टू मेक वेब सर्वर एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज सेशन। सेशन लेयर में क्या होगा? सेशन क्रिएट होगा। ये जो सेशन क्रिएशन का काम है ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है? तो अब हमारा जो डेटा है, जो आपका न्यूज का वर्ड है, ये नीचे उतरता है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर पे भी कुछ खास नहीं होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर पे भी कुछ खास नहीं होता है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, इंपॉर्टेंट लेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। गेटिंग द पॉइंट? जहां से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। कैन आई गो अहेड? तो आपने जब क्रोम ब्राउजर पे न्यूज का वर्ड टाइप किया, ठीक है? ये जैसे ही आपने न्यूज का वर्ड टाइप किया, न्यूज, तो ये जो न्यूज का वर्ड है ये उतर के धीरे धीरे आपके यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ से एक्चुअल काम शुरू होता है। वो क्या होता है, चलो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक एड्रेस लगता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर्स, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर का एड्रेस लगता है, नेटवर्क लेयर पर आईपी का एड्रेस लगता है, और डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस लगता है, ठीक है? आपके पीसी के पास मैक एड्रेस भी है जो फिक्स है, जो बेचारा पैदा होते साथ ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप जब हुआ था तभी उसको मिल गया था, और आईपी एड्रेस आपने दिया। गेटिंग द पॉइंट? पोर्ट नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लगता है। क्या लगता है? पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक लग जाता है, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, इट इज ऑटोमेटिकली पुट इन। सो इज इट क्लियर? मैक एड्रेस आपको देना नहीं है, खुद से आता है। आईपी आपको देना है नेटवर्क लेयर का, लॉजिकल है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो पोर्ट नंबर लगता है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है, ये खुद से लगता है। चलो देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट नंबर कैसे लगता है।
आपका जो न्यूज का वर्ड है वो एक पैकेट की शक्ल ले लेगा और यहाँ पर आपका न्यूज का वर्ड होगा न्यूज। सो व्हाट बट व्हाट इफ सिक्योरिटी फायरवॉल पोर्ट्स आर क्लोज? तो ये तो पैकेट, ये ओएसआई मॉडल में उस फायरवॉल का मतलब जो भी आपका पैकेट है तो वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। पोर्ट फायरवॉल के पोर्ट्स क्लोज है वो सब तो हम आगे देखेंगे। ये तो पैकेट कंस्ट्रक्शन पे मतलब बिना मुझे कुछ पूछे जैसे ही मैं न्यूज टाइप करता हूँ बैकएंड में पैकेट बन जाता है बिना मुझे कुछ पूछे। ये कैसे बनता है ये हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम सिक्योरिटी पार्ट भी देखेंगे। So Sagir bhai is interested in security and for security routing switching is the base. अब हम आगे बढ़ते हैं। Now data is your news। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दो हेडर लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम एंड टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एनवेलप में दो फ्रॉम एंड टू होंगे, यहाँ पर दो नहीं होंगे, यहाँ पे 3 बार फ्रॉम एंड टू लगेगा। फ्रॉम सोर्स पोर्ट, from this destination port, from source IP, to destination IP, from source MAC to destination MAC. Getting the point? Now on this transport layer, the source port क्या होता है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। सोर्स पोर्ट इज any random port number टेकन बाय योर पीसी। तो पीसी का एक रेंज होता है, वो खुद से एक रैंडम पोर्ट नंबर ले लेता है, ठीक है। हमें उसका टेंशन लेना नहीं है, पैकेट जाने के लिए एक रैंडम पोर्ट नंबर उठाता है वो, हर पैकेट को यूनिक बनाने के लिए, क्योंकि एक पीसी में एक पैकेट थोड़ी ना जाता है, 1000 ऑफ पैकेट एक साथ जाते हैं। आप यहाँ पर भी कुछ देख रहे हो, वहां पर भी कुछ देख रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आपने कुछ ट्रांसफर पे भी लगाया है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक तरफ से आपने एमएसटीसी भी लिया है सर्वर का, यू आर वाचिंग न्यूज आल्सो, सो लॉट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज गोइंग ऑन। तो हर पैकेट को दूसरे पैकेट से यूनिक बनाने के लिए पोर्ट नंबर्स लगता है। व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट? देखो जहां सोर्स की बात आएगी वहां आपका माइंड आप पे जाएगा यू, डेस्टिनेशन की माइंड आएगी आपका माइंड जाएगा गूगल पर, ठीक है। तो व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट? बिकॉज यू वांट टू वॉच यू वेंट टू द गूगल वेबसाइट, अगर आपने यहाँ पर http टाइप किया है तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। और अगर आपने HTTPS टाइप किया है तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, 443 होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, जो एप्लीकेशन पर आप जा रहे हो, ये एप्लीकेशन मतलब ये एप्लीकेशन लेयर का मीनिंग होता है कौन से एप्लीकेशन पर आप जा रहे हो। HTTP पे जा रहे हो तो HTTP पोर्ट 80 पे जब खुलता है उसका फिक्स पोर्ट होता है, हर एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स? तो ये आप थोड़ा सा आप देखोगे और आगे भी शायद मैंने कहीं दिया रहूंगा ये। तो बहुत सारी चीजें ये होती है कि बहुत सारे पोर्ट नंबर्स दे आर फिक्स। सो दीज आर वेल नोन पोर्ट नंबर्स एंड HTTP एक एप्लीकेशन है जिसका पोर्ट नंबर क्या है, 80। HTTPS एक एप्लीकेशन है जिसका पोर्ट नंबर क्या है, 443। SSH एक एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन जिस बंदे ने बनाया है, ठीक है, उसने ये पोर्ट नंबर लिया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने HTTP टाइप किया मतलब वो डेस्टिनेशन पोर्ट 80 होगा, HTTPS टाइप किया मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट 443 होगा, SSH टाइप किया, टेलनेट किया, TFTP किया, DNS किया, RDP किया तो पोर्ट नंबर 3389 होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो जिसने जो एप्लीकेशन बनाया है he has got the port number and that is fixed international port numbers. So what is source port? Any port number taken by PC between 49152 to 655535. And what is destination port? The port number of your application. Is it clear? आपको इस वक्त ये समझना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो चीजें लगती है, एक होता है सोर्स पोर्ट, एक होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, आपका पीसी लगाता है ये नंबर के बीच में ताकि हर पैकेट दूसरे पैकेट से अलग हो। Destination port is the port number of the application where you want to go. If you type in HTTP, it will be 80. If you type in HTTPS, it will be 443. If you are typing FTP, it will be 21. So, like if you are doing an RDP, it will be 3389. Getting the point?
Is it clear to everyone? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या डेस्टिनेशन पोर्ट एप्लीकेशन के हिसाब से होता है, फिक्स होता है. Now if I go ahead up and if I go up. Okay, so friends, I'm here and I just open up the Chrome browser and I have typed in www.google.com and I've typed in this news word. अब ये न्यूज वर्ड ये गूगल के सर्वर तक पहुंचना है. अब जैसे मैं वापस लिख देता हूँ, मेरा आईपी है 192.168, ये मेरे पीसी का आईपी है, जो मैं थोड़ा सा पीसी के करीब लिखता हूँ, 192.168.1.1 and this is the MAC address and this is the Google server. This is the IP address of Google, like 5.5.4.4 and this is the MAC address of Google. अब हमने देखा कि एप्लीकेशन लेयर, if it is HTTP, HTTPS, whatever this application that where you want to go, then presentation session नहीं है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका जो न्यूज वर्ड है उसमें पोर्ट नंबर्स लगता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या लगता है? पोर्ट नंबर्स. सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ लगता है. ठीक है, सोर्स पोर्ट इज एनी रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज सोर्स पोर्ट and destination port. ओके, अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर ये जो न्यूज का, इसका एक और काम है. सिर्फ ये काम नहीं है कि पोर्ट नंबर लगाना, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट. इसका एक और काम है. वो काम क्या है? वो काम ये है कि ये ना इतना बड़ा जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अभी तो आपको न्यूज दिख रहा है ना, डेटा एकदम बड़ा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक पीसी से दूसरे पीसी में आप 1 जीबी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो 1 जीबी एक साथ थोड़ी ना ट्रांसफर हो जाएगा, टुकड़े के फॉर्म में होता है, छोटा छोटा पीस इसका बनता है. वो पीस बनाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है, जिसको आगे वर्ड कहते हैं एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट. मतलब आपका डेटा एक साथ नहीं जाता है नेटवर्किंग में, एक साथ खट से चला नहीं जाता. 100 MB एक सेकंड में चला गया, 100 Mbps का आपको स्पीड मिलता है, लेकिन वो एक पैकेट नहीं जाता है, हजारों पैकेट जाते हैं. गेटिंग द पॉइंट? अगर आप कहते हो कि 100 Mbps पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में आपको 100 Mbps का स्पीड मिलता है और आपका 1 GB का डेटा मतलब 1 GB का फाइल है जो आपको ट्रांसफर करना है, तो एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा. इन शॉर्ट, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है. तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और काम होता है, वो होता है सेगमेंटेशन और मार्किंग. मतलब आपके डेटा को ना ऐसा सेगमेंट करता है, टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और उसको मार्क कर देता है. ये है 1 of 1, ये है क्या है 1 of 1, नहीं, ये 1 of 1 नहीं है, ये है 1 of 4, ये है 2 of 4, ये है 3 of 4 और ये है 4 of 4. तो 4 टुकड़े हैं. तो ये पहला टुकड़ा, सेकंड पीस, थर्ड पीस एंड फोर्थ पीस. तो ये आपका न्यूज का वर्ड इसने डिवाइड किया. अब ये क्या करेगा? एक पैकेट बनाएगा, आपका जो एन का वर्ड लेगा और यहाँ पे सोर्स पोर्ट लगाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट लगाएगा. सोर्स पोर्ट एनी रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट आपने क्या टाइप किया है? HTTP या HTTPS किया है, तो ये 443 लगाएगा. गेटिंग द पॉइंट? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? सेगमेंटेशन एंड मार्किंग. अब सेगमेंटेशन एंड मार्किंग होने के बाद आपका ये डेटा आता है नेटवर्क लेयर के पास. ये एन वाला पैकेट, तो नेटवर्क लेयर इसमें इसी पैकेट में क्या करता है? नेटवर्क लेयर एन है, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है और यहाँ पर ये क्या लगाता है पता है? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी. सोर्स आईपी इज क्या होगा? 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 4.4. गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ क्या लग गया? आपका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट तो है ही, साथ में आपके इस डेटा पे क्या लग गया? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी नेटवर्क लेयर की तरफ से. अच्छा, डेटा लिंक लेयर की तरफ से क्या हो गया? सेम आपका पैकेट नीचे उतरता है एज इट हेडर लगते हुए और डेटा आपका होता है एन और सोर्स पोर्ट और ये है डेस्टिनेशन पोर्ट, टिक 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 एंड 443 और सोर्स आईपी क्या होगा? 1.1
और ये है 5.5.4.4, जो ऊपर है वो पूरा यहाँ तक होगा, और उसके बाद यहाँ लगेगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक आपका ए और डेस्टिनेशन मैक फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम समझते बीबीबी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे हेडर्स कौन लगाता है? डेटा लिंक लेयर, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। तो डेटा मेरा एन है और उसके साथ लगा है सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पर, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी नेटवर्क लेयर पर, और सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक कहाँ लग गया? डेटा लिंक लेयर पे। गेटिंग द पॉइंट? अब मेरा जो डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा एनवलप रेडी हो चुका है। अब ये फिजिकल लेयर पे आता है। अब या तो केबल होगा कॉपर, तो करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फाइबर होगा तो लाइट में होगा, ठीक है, जो भी मीडियम है उसमें कन्वर्ट होगा और फिर आगे भेजा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अभी स्विच के पास जाएगा, स्विच कैसे काम करेगा हम आगे देखेंगे, बट इस तरह से आपका डेटा आगे जाएगा, फिर पहुंचते पहुंचते गूगल के पास पहुंचेगा। बट इज द सेंडिंग क्लियर? ओके, सो आई विल रिपीट दिस। इमेजिन कीजिए you are on Google, you are on Chrome, and you type in https मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है भाई, google.com, and you type in the news word here. Now ये जो न्यूज का वर्ड है जो आपने google.com पे टाइप किया है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, ये आप, ये कैसा जाएगा? ये कहाँ गया भाई डायग्राम? डायग्राम ही गायब हो गया, ठीक है, नो इश्यूज, we will create this diagram once again. तो ये जो मेरा न्यूज का वर्ड है ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये कैसा जाएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो न्यूज का वर्ड है, ये एप्लीकेशन, मतलब कौन सा एप्लीकेशन मैंने यूज किया है वो नोट होता है। एप्लीकेशन विच एप्लीकेशन आई वांट टू हिट, लाइक एचटीटीपी एचटीटीपीएस, तो ये तो चलो एप्लीकेशन लेयर पे आ गया। ये कौन सा एप्लीकेशन आपने यूज किया है? आपने यूज किया है ये वो एप्लीकेशन है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस एफटीपी व्हाटएवर इट इज, आरडीपी। प्रेजेंटेशन लेयर नथिंग, सेशन लेयर नथिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको याद रखना है क्या? पोर्ट नंबर्स लगता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। नेटवर्क लेयर पे क्या लगता है? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। डेटा लिंक लेयर पे क्या लगता है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। फिजिकल लेयर पे क्या होता है? या तो कॉपर होगा तो करंट में कन्वर्ट किया जाएगा आपका डेटा, या फाइबर होगा तो लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? सेगमेंटेशन एंड मार्किंग। न्यूज का वर्ड नीचे आया, एक साथ नहीं भेजा जाएगा, इसको सेगमेंट किया जाएगा। तो न्यूज का वर्ड यहाँ आया और इसको हमने छोटे छोटे पीस बना दिए इसके। हाँ, दे आर नेवर यूज, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आर नेवर यूज। अब 4 पीस बना दिए, किसने बनाया? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कहेगा कि अरे इतना बड़ा डेटा, इतना बड़ा थोड़ी ना भेज सकता हूँ, मुझे तो स्टैंडर्ड जो होता है नेटवर्किंग का पैकेट का साइज होता है, जो एनवलप होता है उसका साइज होता है, तो उसी साइज में इसको कट करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा एमटीयू के टॉपिक में। तो साइज होता है जो 1500 बाइट्स का वो साइज होता है, तो कट करेगा 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4 एंड 4 of 4, ठीक है। सेगमेंटेशन हो गया, सेगमेंट हो गया, मार्किंग भी हो गया। मार्किंग क्यों करता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। सो ओके, now let us go ahead. So it is right, presentation layer and session layer are never used. Now this is your data which is your n. Here ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है ठीक है जाने के लिए तैयार हो जाओ, लगाते हैं तुम्हारे पास सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट इज एनी रैंडम पोर्ट नंबर, destination port is the port number of application where you want to hit. If you have type https, it will be 443. If you are taking an rdp of some server, it will be 3389. It depends upon which application you are using, http, https, ftp, rdp, whatever it is, dns, whatever it is, so it will change as per the application. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ये पैकेट पहुंचेगा हमारे नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर कहेगा रुक जाओ, मुझे कुछ हेडर्स लगाने हैं। तो हमने कहा ठीक है नेटवर्क लेयर, तुम भी कुछ हेडर्स लगा दो। तो ये सोर्स पोर्ट टिक टिक टिक, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट 443, ठीक है। और ये सोर्स आईपी और ये डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या है? सोर्स आईपी जैसे हमने देखा था 192.168.1.1 इज माय आईपी एंड दिस इज फॉर एग्जांपल 5.5.4.4। तो ये 1.1 192.168.1 एंड 5.5.4.4 ये हो गया मेरा आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर ने कहा ठीक है, मेरा काम कंप्लीट होता है। नाउ यू गो टू द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर कहता है रुक जाओ, मुझे भी कुछ लगाना है। और ये हो गया एन, ये सेम ऐसे ही आएगा, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, source 443 and random port number, source IP and for example 4.4 in short destination IP। and now source MAC और destination MAC। source MAC जो है आपके पीसी का MAC एड्रेस होगा, जो कि होगा AAA, और destination MAC will be BBB, ठीक है। now your data is ready to send। अब फिजिकल लेयर पे आ गए तो कॉपर है तो करंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फाइबर है तो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, तो ये होने के बाद आपका डेटा जाता है सामने वाले के पास, मतलब गूगल तक पहुंच गया। गूगल वाला क्या करेगा पता है? सबसे पहले फिजिकल से वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा, मतलब मैक एड्रेस पड़ेगा, डेटा डेटा डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए है। फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा, अगर उसके लिए है तो नेटवर्क लेयर को भेजेगा, बोलेगा तुम पढ़ो, तो नेटवर्क लेयर पढ़ेगा डेस्टिनेशन आईपी, क्या ये मेरे लिए है, बोलेगा हाँ। फिर अच्छा, मेरी फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा, बोले अच्छा मेरी कौन सी सर्विस पे हिट करना चाहता है, मतलब सॉरी ये क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो यहाँ पर वो पोर्ट नंबर देखेगा, अच्छा 443 वेब सर्विस, ओके ओके, ही वांट्स टू सी द न्यूज। फिर सेशन प्रेजेंटेशन तो है नहीं, सीधा जो एप्लीकेशन है उधर हिट हो जाएगा और आपको फिर न्यूज का डेटा भेज देगा। गेटिंग द पॉइंट? सो रिवर्स में फिजिकल से डेटा लिंक के पास जाएगा, डेटा लिंक पढ़ेगा। देखो आपके पास लेटर आता है तो आप क्या देखते हो ज्यादातर, आपका इंटरेस्ट क्या होता है, क्या ये लेटर मेरे लिए है, मतलब आप क्या देखते हो? टू देखते हो, है ना, डेस्टिनेशन देखते हो। जब आपके पास लेटर आता है तो आप ये देखते हो पहले टू किसके लिए है, आपके लिए है, चलो फिर आपने फ्रॉम देख लिया, लेकिन पहला इंटरेस्ट हमारा ज्यादा होता है टू में। तो उसी तरह से जब गूगल के पास से जाएगा तो देखेगा डेस्टिनेशन मैप पड़ेगा, क्या ये उसके लिए है, और फिर अगर उसके लिए होगा तो नेटवर्क लेयर को देगा, नेटवर्क लेयर डेस्टिनेशन आईपी पड़ेगा, अगर सही है, अगर आईपी अपना ही है तो बोलेगा ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पोर्ट नंबर पड़ेगा और बोलेगा अच्छा 443 है, फट से एप्लीकेशन लेयर को देगा, एप्लीकेशन बोलेगा कि ठीक है ये तो वेब सर्विस, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो क्लियर हो चुका है कि 443 है, मतलब ये वेब सर्विस को हिट करना चाहता है, और सीधा एप्लीकेशन के पास जाएगा और ये उसको न्यूज दिखा देगा, ठीक है। So how does it learn destination MAC or IP? Is that sent from the source PC? Now it's a very good question and it is a very logical question जो हम आगे देखेंगे कि मैंने ये बताया कि सोर्स पोर्ट तो एक खुद से लगाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट तो उसको आपने एचटीटीपीएस दिया तो मिल गया, ये तो क्लियर हो गया कि हेडर कहाँ से मिल रहे, सिंपल सा सवाल है। अच्छा है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट तो खुद, सोर्स पोर्ट इनी रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट तो चलो यहाँ से मिल गया। सोर्स आईपी खुद का आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी जब आप गूगल डॉट कॉम टाइप करते हो तो आपने नाम टाइप किया, अब आपने नाम टाइप किया है तो आपका पीसी बैकएंड में डीएनएस को क्वेरी करता है, डीएनएस सर्वर को, और वो उसको आईपी देता है और वो आईपी यहाँ पे लगा देता है, ठीक है। तो ये तो डीएनएस का क्वेरी आप में से सबको पता ही होगा, डीएनएस फंक्शनैलिटी ऑफ डीएनएस। तो आपने नाम टाइप किया, आपका पीसी बैकएंड में क्वेरी करता है और वो लगा देता है। लेकिन जब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की बात आती है तो सोर्स मैक खुद का होता है, डेस्टिनेशन मैक गूगल का यहाँ नहीं होता। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि डेस्टिनेशन मैक का एक बहुत बड़ा स्टोरी है ठीक है, जो हम आगे समझेंगे कि डेस्टिनेशन मैक कैसे मिलता है। और गूगल का ऑब्वियसली मुझे मैक नहीं मिल सकता, लेकिन कैसे मेरा पीस पैकेट न्यूज का गूगल तक पहुंच जाता है, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने गूगल का मैक लगाया बीबीबी, बट एक्चुअली देयर इज अ बिग स्टोरी बिहाइंड फ्रॉम गेटवे ऑन पीसी। ओके, तो ये बात आपकी तो सही है कि जरा भाई इसको एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लगेगा तो देयर इज ए कंप्लीट लेक्चर टॉपिक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आपने वन लाइन में आंसर सही दिया है। नाउ लेट अस गो अहेड। सो फ्रेंड्स
दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। कल मैं वैसे मॉडल को वापस लूंगा और थोड़े अपर लेवल पे लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल मैं वापस इसको रिवाइज करवाऊंगा। End of this session, I would like to inform you that Attari Classes has multiple course offerings. You can we have the course for AWS Cloud Solution Architect. We have the course for Azure Cloud Administration. And one of the leading companies in the world for virtualization is VMware. We provide training on VMware vSphere. And if you are looking for any server training on Windows, we have a Microsoft Server course, Windows Server course. And for networking, we have a CCNA course. So if you are looking for any of these courses, you can get in touch with our support decks on this number 9987088551. If you are calling outside India, you can add +91. Do remember that every session, every lecture, the first lecture of any new batch is a free demo lecture. So don't miss and try to attend a free live demo session at Attari Classes. Thank you. Bye bye.